गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में क्लास 9th मैथ्स लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से कुछ जो बेसिक टर्म्स थी उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा था। व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ एन एंगल, what are the different parts of an angle, what is vertex, what are the arms of an angle, how an angle is represented, how a point is represented, what is an acute angle, obtuse angle, reflex angle, straight angle and right angle, what are vertically opposite angles, adjacent angles, linear pairs, what are parallel lines, and what are the different angles formed in two parallel lines when there is one transversal. When a line intersects two given parallel lines, what are the different angles and what is their name and what is the relation between these angles? We have covered this. Now the time is to solve the problems. I have taken one problem here. PQ and RS are the two lines. See here, PQ and RS are two lines. And here the ratio between angle POR yani this angle and ratio ROQ this. Ratio between these two angles, suppose this is angle 1 and this is angle 2. The ratio between angle 1 and angle 2 is given as 7:3. We have to find other angles. Let us start. First of all, the ratio is given between angle POR and angle ROQ. As we know, since POQ is a straight line, see here, POQ is a straight line. And we have read that total angle formed on a straight line is 180 degree. यहाँ पर POQ एक सीधी रेखा है और हमने ये पढ़ा है कि एक सीधी रेखा के ऊपर या नीचे बनने वाले पूरे कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर POQ एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स POQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस रे RO is on the straight line POQ, यानी किरण RO लाइन POQ पर स्थित है। इस तरह से यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक। Two angles are formed on the straight line POQ. Since the sum of angles formed on a straight line is 180 degree, therefore the sum of angle 1 and angle 2 will be equal to 180 डिग्री। क्योंकि कोण 1 और कोण 2 ये दोनों मिला के संपूर्ण कोण बना रहे हैं रेखा POQ पर, और सीधी रेखा POQ पर बनने वाले संपूर्ण कोण का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलाकर इसका कोण का मान 180 डिग्री होगा। क्यों? ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिसे हम हिंदी में रेखीय युग्म कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। The sum of angles formed by the linear pair on a straight line is 180 degree. ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो since POQ is a straight line, therefore angle POR plus angle ROQ is equal to 180. Sum of two angles is given and ratio of two angles is given. Sum of two angles and the same ratio of two angles is given. Now we will find the sum of ratios. Therefore, sum of ratios. Sum of ratios means 7 plus 3 equal to 10. Therefore, angle POR is equal to first angle means first ratio is 7 upon sum of ratio 10 multiply total value 180
10 से हम यहाँ भाग देंगे, 10 से कम 10, यहाँ पर काटा हमने 18 आ गया, और 18 से 126, 126 डिग्री। नाउ एंगल ROQ is equal to, second part is 3 upon sum of ratios 10 multiply by sum of angles 180, हमने डिवाइड किया 18 3 जा 54, एंगल ROQ is equal to 54। देखिए ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू एंगल्स, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 7:3। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले संपूर्ण कोण का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ दो ही एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों एंगल मिल करके कितने होंगे, 180 डिग्री। इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। किस प्रॉपर्टी से हुआ, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इसको हिंदी में रेखीय युग्म कहते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों एंगल का जो सम है, इसका इस रेशियो है, इसका सम निकाल लिया, 7 और 3 का सम निकाल, 7 + 3 10। फर्स्ट एंगल की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट एंगल इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो 7 अपॉन सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। 10 से हमने डिवाइड किया, 10 से कम 10, यहाँ 18 आया, 18 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 18 से बन गया 126 आ गया। दूसरा एंगल हमको निकालना है, एंगल ROQ इक्वल टू सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो टर्म 3 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 10 मल्टीप्लाई सम ऑफ एंगल्स 180। 10 से 180 भाग दिया गया, 18 का 3 में गुणा किया गया 54। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री, और इस सेकंड की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। आपको कल मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको मैंने इस तरह से आपको बताया था, ऐसे क्रॉस करके हाथ को, कि आमने सामने आप जो देख रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ, आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इन दिस वे, ये हमारा एंगल, ये इतना एंगल 54 डिग्री है, इसके ठीक सामने का ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये एंगल हमारा 126 डिग्री है, इसके सामने का ये भी एंगल हो जाएगा 126 डिग्री। सो एंगल, इसका नाम क्या है, ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, एंगल POS इक्वल टू 54 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आल्सो एंगल POR is equal to angle SOQ, angle SO equal to 126। ये भी किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी इस प्रॉपर्टी से सामने के जो शीर्षाभिमुख कोण है उस प्रॉपर्टी से। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लेसन 6 के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर दिस वन लाइन्स AB and CD, line this one AB and CD intersect at O, this point. If angle AOC means angle AOC means this angle, and angle BOE this angle and this angle, इन दोनों एंगल का सम ऑफ एंगल AOC and BOE is equal to 70 डिग्री, and angle BOD means this angle, its value is 40 degree.
We have to find angle BOE. Here it is BOE. This angle we have to find, and the reflex of COE. COE. This angle, and reflex of this angle means, इसको ध्यान से समझिए. What is mean by reflex angle? इसको ध्यान से समझिए. Suppose this is an angle. Suppose these are the two rays. Here it is point O, and this is an angle 120 degree. Suppose someone asks you what is the reflex angle of 120 degree. What is the reflex angle of this one? तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है उतने पोर्शन को छोड़ करके बाकी जितना ये कंप्लीट पोर्शन बचा ये आपका ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा. रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री मींस 120 डिग्री, इसको इतने को हटा दीजिए, बाकी ये जितना पोर्शन जो बचेगा एंगल का ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा. यानी पूरा एक कंप्लीट सर्किल में से जितना एंगल है उसका पोर्शन हटा करके बाकी जितना एंगल बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. आई हैव टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज इन बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री. ओके, कम ऑन. ये एंगल COE है, इसका रिफ्लेक्स पूछा है, तो इतने पोर्शन को हटाकर बाकी ये पूरा पोर्शन जो बचेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके ये पूरा यहाँ तक, ये जो पूरा पोर्शन बचेगा ये पूरा एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा. यानी उसमें ये एंगल, ये और ये चारों को जब जोड़ देंगे तब इसका क्या आएगा, रिफ्लेक्स आएगा. आइए हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन AB and CD intersect at O. AB and CD are two lines and these two lines are intersecting at O. AB और CD दो रेखाएं हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो मैं पहले बता चुका हूं कि ये एंगल इसके बराबर होगा. इसको दोनों एंगल क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यानी ये एंगल इसके बराबर होगा. इन द सेम वे ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. क्यों बराबर होगा, इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइन हमारी AB है, दूसरी CD है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर. ये एंगल बराबर किसके होगा, इस एंगल के. वही हम लोगों को यहाँ पर लिखना है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. Since lines AB and CD intersect each other at point O, therefore this angle means COA or angle AOC, this angle will be equal to this angle. ये लाइन, ये एंगल सामने, therefore angle AOC or COA, therefore angle AOC will be equal to this angle, angle BOD, angle BOD. यानी कोण AOC का मान कोण BOD के बराबर होगा. क्यों बराबर होगा, ये दोनों कोण क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. आप यूं समझ, जैसे ये उंगलियां हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ऊपर और नीचे के दोनों कोण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एंगल AOC is equal to angle BOD. Why? Within brackets, vertically opposite angles, and vertically opposite angles are equal. And here angle BOD is equal to 40 degree, means angle AOC will also be equal to 40 degree, and this is equal to 40 degree. In this way angle AOC, the value of angle AOC will be equal to angle BOD. ये एंगल AOC और BOD आपस में बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं,
और एंगल BOD का वैल्यू हमारे यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, तो जितना BOD की वैल्यू होगा उतना AOC का वैल्यू होगा। इट मीन्स एंगल ऑफ AOC इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल ऑफ AOC, वैल्यू ऑफ एंगल AOC इज 40 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल BOD इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पर AOC की वैल्यू जब आ गई, इसको यहाँ रख देंगे तो एंगल BOE की वैल्यू आ जाएगी। नो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। In this way, the value of angle BOE, this angle, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री और ये वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री। और AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी टोटल एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं 1, 2 एंड 3, यानी इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, इसको निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE equal to 180 degree. Why? Because all these three angles are made on a straight line AOB. किसी भी एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल ऊपर या नीचे 180 डिग्री होता है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कोण एक सीधी रेखा AOB पर बन रहा है, इसलिए इन तीनों कोणों का वैल्यू मिला करके 180 डिग्री होगा। Means the angle, the sum of all angles formed on a straight line is always 180 degree. एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है प्लस एंगल COE और एंगल BOE की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और 40 प्लस 30 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। In this way, this angle, value of this angle is 110 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल आया हमारा COE 110, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल का तरीका ये है कि जिस एंगल का निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, उसको 360 डिग्री 360 डिग्री में से आप घटा देंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। हमेशा जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उस एंगल के मान को 360 डिग्री में से घटा देंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इन दिस वे रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 degree minus 110 degree equal to 250 degree. This is the answer. And this way our answer is this one.